Okay, beta. So we are starting with basics of electricity. The topic is basics of electricity. After today's class, you'd be able to solve questions, which I have the worksheet I will share in the group today. Basics of electricity. In basics of electricity, we are supposed to study for charge, current, potential difference or the voltage or EMF. Then we have to talk about resistance, and in the resistance we will be looking upon Ohm's law as well. All of you are familiar with these terms, Ohm's law, and then we have resistivity. So these are the things which we have to study. So these involve lot of calculations as well. Like every topic is involving calculations or numericals. ठीक है, तो mainly ये जो basics of electricity है, it's all about mostly numericals are there, and second place descriptive, and third place graphical things are there as well in Ohm's law. You know Ohm's law, VI के ग्राफ बनाने हैं, right? तो ग्राफ्स भी इसके अंदर होंगे. So you know that we are done with charge and current and potential difference and EMF. So today we'll be focusing on these three things: resistance, Ohm's law, and resistivity. So first let's talk about resistance. Okay, this resistance is actually electrical resistance, and its symbol is capital R. So sometimes it is termed as electrical resistance, because you know resistance is a common word that can be used anywhere, right? So this is electrical resistance, which is R. So what is electrical resistance? Electrical resistance is, let's say, similar to friction. Its role is similar to friction in mechanics. So what was the role of friction? Friction क्या करती है? What friction do to the moving object? It try to slow down the object. And we know that friction depends on many things. Friction mainly depend on the roughness of the surfaces. If the surfaces are rough, then it will introduce lot of friction. But if surfaces are smooth, contact surfaces are smooth, then it introduces less friction. Friction at times is very important for us, and friction at times is not desirable. We don't want friction to be there. Let's say, what are the conditions in which friction is most important thing for us? Number one, holding or gripping the pen. If you are writing, so you want that you keep gripping the pen. And how can you, and pen may not slip from your fingers. So if you want to keep gripping it, so आपको क्या चाहिए? Friction चाहिए. You want high friction over here. ठीक है? इसी तरह if I am talking over here and I am not slipping, if I am walking here and I am not slipping, let's say I am walking and not slipping, so friction is over there. So I want friction. We want friction while we are moving. In the similar way in the cars, when the cars have to accelerate, we need friction between tires and road. फ्रिक्शन होगी तो गाड़ी के टायर की ग्रिप होगी और वो एक्सेलरेट करेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं है तो वो स्किड करना शुरू हो जाएगा. ठीक है? अच्छा, अब कहाँ पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन, क्योंकि फिर मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर आना है. तो कहाँ पे हमें, लेट्स से वी डोंट वांट फ्रिक्शन. वी डोंट वांट फ्रिक्शन इनसाइड द इंजन ऑफ द व्हीकल. Inside the engine of the vehicle. Why? Because there are mechanical parts like solid parts, metal parts, levers which are hitting each other and moving. तो उसमें हम क्या डालते हैं? इंजन लुब्रिकेंट, इंजन ऑयल डालते हैं. इंजन ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. वो जो मूविंग पार्ट्स, मेटालिक पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में जाता है और लुब्रिकेट करता है, और उससे क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाती है. अगर आप एक गाड़ी या मोटर बाइक को बगैर इंजन ऑयल के चलाएं तो आप कितनी देर चला सकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू मिनट्स तक चला सकेंगे. उसके बाद इंजन सीज हो जाएगा. सीज होने का मतलब है उसके पार्ट्स अंदर से जो है फ्रिक्शन की वजह से वीयर एंड टीयर हो जाएगी और वो ग्रिप कर जाएंगे और वो टूट जाएंगे.
टूट जाएंगे तो हम कहते हैं इंजन सीज हो गया, द कार इज़ नॉट मूविंग, द बाइक इज़ नॉट मूविंग। पता लगा क्या हुआ, अंदर इंजन ऑयल ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है कि फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल भी होती है, फ्रिक्शन हमारे लिए हैज़ार्डियस भी होती है। समटाइम्स वी वांट फ्रिक्शन, समटाइम्स वी डोंट वांट फ्रिक्शन। Resistance is similar to that. Sometimes we want resistance to be there, sometimes we don't want resistance to be there. तो let's say अगर मैं ये कहूँ कि भाई I am drawing an electrical circuit और उसके अंदर this is the battery and this is a heating coil. Nowadays it's winter time, so let's say we are used to using the heater. Why we use heater? Because we want heat energy, right? उसके बाद अब देखो इस सर्किट में आई एम यूजिंग टू टाइप्स ऑफ वायर्स. वन इज द कनेक्टिंग वायर. सो वन इज दिस विच इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर एंड द अदर वन इज दिस इज मेन वायर. कनेक्टिंग वायर का क्या रोल है और मेन वायर का क्या रोल है? यू हैव टू लुक अपॉन दैट. यू हैव टू लुक कि इन दोनों वायर्स जो हैं इनके क्या क्या रोल हैं. ठीक है. So what you do is कि आप क्या करते हो, you will say कि भाई कनेक्टिंग वायर का काम क्या है? कनेक्टिंग वायर का काम है कि भाई ये करंट को आगे पहुंचाए. क्यों? क्योंकि ये जो हीटिंग कॉइल है इसने उस करंट को यूज करना है. तो कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस व्हाट डू यू थिंक क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? हाँ, कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लो होगी तो उसको रेजिस्ट नहीं करेगी करंट को और करंट आराम से गुजर जाएगा. राइट? तो ये तो बेसिकली कनेक्टिंग वायर को हम ट्रांसपोर्टर वायर भी कहते हैं. तो ये तो ट्रांसपोर्टर है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है. तो ट्रांसपोर्टर तो कभी भी एनर्जी को यूज नहीं करता ना. ठीक है. तो ये वायर यहाँ, करंट यहाँ से आ गया, इसकी रेजिस्टेंस लो है, यहाँ आ गया. अब इसकी बात करते हैं, मेन वायर हीटर की. हीटर की रेजिस्टेंस हमें क्या चाहिए? वेरी हाई. क्यों? Because that wire is going to produce heat energy. अब वो कैसे हीट प्रोड्यूस करेगी? जब उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी. तो यूजुअली ये जो वायर होती है ये नाइक्रोम वायर होती है. नाइक्रोम. ठीक है. नाइक्रोम वायर. मैम चेयर्स नहीं है. ओके. अच्छा, तो देखो ये है नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर की बेटा वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है. वेरी हाई रेजिस्टेंस. अब हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा? करंट कहेगा भाई मैंने यहां से जाना है आगे. क्यों? क्योंकि करंट पॉजिटिव से निकलता है, उसने नेगेटिव में हर सूरत में पहुंचना है. राइट? अब ये वायर उसको रेजिस्ट करेगी कि भाई ना जाओ. करंट कहेगा मैंने जाना है. ठीक है. तो समझ लो इन अ वे उनकी फाइट हो गई आपस में. और फाइट में क्या होता है? हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. आवाजें आ रही होती हैं, ऐसे ही है ना. तो लेट्स से यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई और क्या हुआ कि वही करंट की एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई. Heat energy. Why? Because the current and the resistance wire are fighting with each other. तो उनकी इस दौरान जो करंट की एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो गई. तो you are getting heat from there and we want heat from there. तो that's how high resistance wire is very useful for us क्योंकि उसने हीट प्रोड्यूस करनी है. अब ये वायर कहाँ कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक हीटर में होती है, हेयर ड्रायर में होती है, इलेक्ट्रिक आयरन में होती है. ठीक है. उसके बाद और कहाँ हो सकती है? इलेक्ट्रिक केटल में होती है. राइट? और जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं ज़ाहिर है उनके अंदर होती है. तो ये वायर हमें इन जगहों पे हमें चाहिए. वॉशिंग मशीन, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं जो वार्म वाटर सप्लाई करती हैं उसके अंदर भी होती है. अगर इलेक्ट्रिक गीज़र है, इंस्टेंट गीज़र है, तो उसके अंदर भी ये वायर होती है. क्योंकि हमें जहाँ जहाँ हीट चाहिए हमें हाई रेजिस्टेंस वायर, एक ही नाइक्रोम वायर यूज़ होती है. चाहे हेयर ड्रायर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, वॉशिंग मशीन हो, गीज़र हो, कुछ भी हो, उसके अंदर हीटिंग वायर कौन सी होती है? नाइक्रोम वायर होती है. नाइक्रोम वायर एक स्पेशल वायर है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है. 3400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर लेती है और ये मेल्ट डाउन नहीं होती. राइट? तो नाइक्रोम वायर और कॉपर वायर ये यूजुअली किसकी होती है? ट्रांसपोर्टर वायर कॉपर वायर होती है. कॉपर, क्योंकि कॉपर वायर आपने अक्सर ऐड में देखा होगा कि ये जो वायर्स हैं पाकिस्तान केबल या फास्ट केबल 99.9% प्योर कॉपर. तो 99.9% प्योर कॉपर का मतलब क्या है? कॉपर के अंदर टू मैनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. तो दैट्स वाई कॉपर वायर एज अ ट्रांसपोर्टर यूज़ होती है.
ये जितनी भी वायर्स लगी हुई हैं स्विच से इन लाइट्स तक या एलईडी तक या एसी तक, जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं सारी की सारी लो रेजिस्टेंस वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं। लेकिन वायर जो आपको पोल्स पर नजर आ रही होती हैं सिल्वर कलर की, वो यूजुअली एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है। या जो और डैम से लेके हमारे सिटी तक आ रही होती हैं वो यूजुअली स्टील की केबल्स होती हैं, ठीक है। ओके, सो अब देखो, अब हमें रेजिस्टेंस का रोल समझ आ गया कि भाई रेजिस्टेंस जो है ये करंट को अपोज करता है। तो सम टाइम हमें लो रेजिस्टेंस वायर चाहिए, सम टाइम हमें हाई रेजिस्टेंस वायर। हमने ये नहीं कहना कि भाई रेजिस्टेंस इज नॉट अ गुड थिंग, resistance is good thing for us as well, in the similar way as I talked about friction, कि sometime friction is useful, sometime friction is not useful. Okay, so let's write about this resistance. So we say that it is ability of a material to oppose flow of current through it is resistance. अच्छा, this is not the definition but this is just journal description कि भाई resistance होती क्या है। Resistance is ability of a material to oppose the flow of current passing through it, कि वो उसको oppose करे। अब ये oppose जो है वो कैसे होता है, इसकी reason क्या है, reason for resistance। अच्छा देखो, फ्रिक्शन की रीजन क्या होती है, फ्रिक्शन की सरफेस इरेगुलरिटीज, ऐसे है ना, टू सरफेसेस जो इन कांटेक्ट होती हैं वो रफ सरफेस होती है, तो दैट क्रिएट्स द फ्रिक्शन। अच्छा, इन द सिमिलर वे हाउ दिस रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड, रेजिस्टेंस की क्या रीजन होगी, व्हाट डू यू थिंक, रेजिस्टेंस की मेन रीजन क्या होगी, मेन रीजन जिस तरह फ्रिक्शन की रीजन सरफेस इरेगुलरिटी है, तो एक वायर के अंदर से चार्जेस या करंट गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, तो वो मटेरियल उसको रेजिस्ट कैसे करेगा, डेंस पार्टिकल्स। ओके, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द पार्टिकल्स। एक्चुअली लेट्स से आप सब क्या हैं, एटम्स हैं एक वायर में, और मैं क्या हूं, इलेक्ट्रॉन या करंट, मैंने फ्लो करना है। अब अगर मैं यहां से फ्लो करना चाहूं और मैंने फ्लो करना है आपको टच किए बगैर, क्योंकि अगर मैं आपको टच कर गया तो मैंने वहां पे आप मुझे रेजिस्ट करोगे, तो मैं अपनी कुछ एनर्जी वहां वेस्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि जब मैं आपको टच करूंगा तो आप मुझे रोक रहे होगे, तो मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा और यहां से निकल जाऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर दूर हो और मैं आपके साथ इन कांटेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैं आराम से जा रहा हूं भाई, मैं अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि जो मेन रीजन है वो क्या है, मेन रीजन इज collision ऑफ चार्जेस विद एटम्स ऑफ द मटेरियल। ये मेन रीजन है इसकी, कि इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे होते हैं वो उस मटेरियल के एटम को हिट करते हैं, और जब हिट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी वहां डेसिपेट करते हैं, राइट। तो फिर उसने, मूसा ने सही कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो द रीजन फॉर दिस इज collision of charges, which is actually electrons, with the atoms of material. Okay, so this is the reason for resistance. Now we have to look for resistance of wires. This is the first important thing. Before it was just the introduction, but now this is the first important topic, resistance of wires, and you're already done that in your O levels. So what is resistance of wires? Resistance of wires जो है, wires उनकी resistance के factors क्या होते हैं, हमने ये देखना है, ठीक है। अच्छा, तो resistance जो पहला factor है बेटा इसका, that is length of wire. Resistance proportional to length of wire. This is quite simple. Length of wire. How? Well, if the wire is very longer, it means that there are more particles over there, so they will offer more resistance to the charged particles. Okay, so the second one is
The second factor is cross-sectional area. Cross-sectional area. This is very important. Cross-sectional area means that thickness of the wire. Cross-sectional area क्या होता है? Thickness. जिस तरह अगर ये मार्कर है ना, तो let's say this is part of the wire. एक लंबी सी वायर है, मैंने यहाँ से काटा वायर को और यूं आपको दिखा रहा हूँ. So this thing is the cross-sectional area. The thickness. ये जो thickness होती है, this is cross-sectional area. So this is very important. So resistance is inversely proportional to cross-sectional area. क्यों? क्योंकि देखो अगर cross-sectional area ज़्यादा है, let's say आप लोग बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 रोज में और 7 रोज एक्सपेंडेड हैं, तो आपके बीच में स्पेस क्या होएगी? ज़्यादा होएगी ना. तो अगर स्पेस ज़्यादा है तो मैं क्या यहाँ से गुजर जाऊँगा आराम से? आई एम द करंट और चार्ज, तो मैं गुजर जाऊँगा ना क्योंकि स्पेस ज़्यादा है. लेकिन अगर आप ये 7 रोज बिल्कुल क्लोज होके बैठ जाओ, जब क्लोज होके बैठो तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना. तो जब आपका एरिया कम हो जाएगा और अब अगर मैंने यहाँ से पास करना है तो अब क्या होगा? अब मैं पास नहीं कर सकूंगा या मुझे बहुत मुश्किल होगी. अगर मैं पास कर भी गया तो आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, आई हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी. तो इसलिए मैं कहूँगा यार आपकी रेजिस्टेंस, आपकी तरफ से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है. तो दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाई वी से कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है तो फिर आपकी रेजिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. बिकॉज देयर in greater cross sectional area more spaces between atoms are there through which electrons or current can easily pass, right? Okay, so these two are the factors. Number 3 factor is temperature. Number 3 factor is temperature. So resistance is directly proportional to temperature of wires. अब कैसे? टेम्परेचर कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वायर्स के अंदर जो एटम्स हैं या मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, द एटम्स कीप वाइब्रेटिंग. सॉलिड में स्पेशली एटम हैज वाइब्रेशनल मोशन. ऐसे ही है ना. तो आप जस्ट इमेजिन करो कि ये जो एटम्स आप लोग बैठे हुए हो, अभी आपका टेम्परेचर बहुत लो है. आपका टेम्परेचर क्या है? लो. अगर टेम्परेचर लो है तो आपकी वाइब्रेशनल स्पीड क्या होएगी? कम होएगी ना. तो आप अभी वाइब्रेट कर रहे हो और बहुत स्लो वाइब्रेट कर रहे हो. लेट्स से मैं चार्ज हूं, यहां से गुजर रहा हूं, अभी ये वाइब्रेट कर रहा है मुस्तफ़ा, तो मे भी मैं यहां से गुजरूं तो मुस्तफ़ा उस तरफ जा रहा हो और इसने वापस जरा स्लो आना है तो उतने में मैं यहां से निकल जाऊंगा आराम से. मतलब मैं वेट तो नहीं करूंगा, ये कोइंसिडेंटली होगा कि जिस टाइम मैं यहां पहुंचाऊं तो उधर जा रहा है तो मैं आराम से यहां से निकल गया. लेकिन अब इमेजिन करो कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपकी वाइब्रेशनल मोशन भी क्या हो जाएगी? एटम्स की फास्ट. अगर फास्ट हो जाएगी तो अब मेरे कोलाइड करने के चांसेस पहले से कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे ना, क्योंकि अब ये फास्ट मूव कर रहा है. तो हो सकता है मैं गुजर रहा हूं, अभी उधर जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो आके मुझे हिट करे, राइट? तो इट मींस कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस is definitely going to increase. So these 3 factors are from O levels and these are very important. Longer wires have higher resistance, shorter wires have lower resistance. क्यों? Number of atoms ज़्यादा होंगे longer wire में और shorter wire में number of atoms कम होंगे. Wider wires have lower resistance and thinner wires have higher resistance. And then if the temperature is low, the resistance will be low. But if temperature is high, then resistance will be high as well. Okay, now what we're gonna do is we have to look for an expression. So let's work out for the expression by using these two. So resistance is proportional to length and resistance is inversely proportional to area. So I am clubbing these two together. So clubbing these two together gives me R proportional to L by A. L by A. ऐसे ही है ना, दोनों को एक साथ कर रहा हूं क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं, तो मैं कह रहा हूं यार अलग क्या लिखना है, इनको एक साथ ही लिख देते हैं. अब इसके बाद मैंने क्या करना है? R इक्वल्स, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब इसके साथ इक्वल लिखते हैं तो साथ हमें एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है. ये कंडीशन होती है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में करना है, साथ कांस्टेंट लाजमी लिखना है, और L ओवर A हो गया. अब हम सोचेंगे यार ये जो कांस्टेंट है ये क्या है? व्हाट इज दिस कांस्टेंट? इट शुड बी समथिंग, वी हैव टू गिव सम नेम टू दिस. तो उसके लिए व्हाट वी डू इज R इक्वल्स रो L by A.
रो एल बाय ए। अब जो मैंने कांस्टेंट को नाम दिया है, वेयर दिस रो इज एक्चुअली रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये कांस्टेंट है। इट इज सिमिलर टू डेंसिटी, लाइक इट लुक्स सिमिलर टू डेंसिटी, इट सिंबल इज सिमिलर टू द सिंबल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी भी ऐसे ही लिखते हैं ना, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, इसका कॉन्सेप्ट भी डेंसिटी वाला है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी का आपको पता है कि अगर आप सी वाटर की डेंसिटी निकालनी है तो सी वाटर को एक आप बीकर में ले लो, एक ग्लास में ले लो, एक बड़े कंटेनर में ले लो, डेंसिटी तो सेम रहेगी, बिकॉज डेंसिटी डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ थिंग यू आर यूजिंग, डेंसिटी इज फीचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर ये पूरी बिल्डिंग एक वुड से बनी है, लेट्स से वुडन स्ट्रक्चर है, और अगर ये पेन जो है ये भी वुड का उसी वुड का बना हुआ है, तो इस पूरी बिल्डिंग और इस पेन में कॉमन चीज क्या होगी, डेंसिटी सेम होगी, बिकॉज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, नॉट अपॉन हाउ बिग और हाउ स्मॉल द ऑब्जेक्ट इज, हाउ हैवी or how lighter the object is, right? So density is feature of material. In the similar way, resistivity is feature of material. Resistivity is feature of material. Let's say जितने भी conducting material हैं, copper wire, constant 10 wire, steel wire, nichrome wire, जितनी भी wires हैं जिनके अंदर से current गुजर सकता है, gold wire, right? silver wire, इन सब की अपनी अपनी resistivity constant होती है। अगर कॉपर वायर है तो उसकी एक रेजिस्टिविटी है। आप बेशक छोटी सी कॉपर वायर यूज करें, बड़ी सी कॉपर वायर यूज करें, थिन कॉपर वायर यूज करें, थिक कॉपर वायर यूज करें, प्लेट यूज कर लें कॉपर वायर की, बड़ा रॉड या पाइप यूज कर लें कॉपर वायर का, अगर वो कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम है, राइट? सो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल, और हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब बेस्ड ऑन सम कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स, आप मुझे बताओ रेजिस्टिविटी किन मटेरियल्स की वेरी लो होगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हम वो कहां यूज कर रहे होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी लो है, उनको कहां यूज करते हैं? कॉमन एवरीडे लाइफ से बताना है आपने, इस सर्किट से देख के बता सकते हो। बिल्कुल, कनेक्टिंग वायर्स, कॉपर जो है वो कनेक्टिंग वायर है, उसका काम है करंट को आगे भेजना, तो उसकी रेजिस्टिविटी लो है। जिसकी रेजिस्टिविटी लो है उसकी रेजिस्टेंस भी लो है। रेजिस्टिविटी इज फ्रॉम रेजिस्टेंस, जो जिसकी रेजिस्टिविटी लो उसकी रेजिस्टेंस भी लो। इसका मतलब है वो करंट की एनर्जी को यूज अप नहीं करेगी। इसका मतलब है कि भाई वो ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करना है आपने। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसपोर्टर वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली ट्रांसपोर्टर वायर कहाँ होती है? जो पावर स्टेशन से उस सिटी तक करंट को लेके आती है। ये जो बड़े बड़े आपको पाइलॉन्स और पोल्स नज़र आते हैं, उसके ऊपर हैवी केबल्स जा रही होती हैं 5 या 7, जो पावर स्टेशन से सिटी तक आ रही होती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट वायर्स तो वो हैं, तो उनकी रेजिस्टिविटी हमें क्या रखनी है? लो रखनी है। क्यों लो रखनी है? कि भाई वो करंट को यूज़ अप ना करें, आगे ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि हमें आगे यूज़ करना है, राइट? दूसरी ट्रांसपोर्टर वायर्स कहाँ है? आपके घर के मीटर से लेके जो अंदर वायर आती है। तीसरी कहाँ है? जो आपके स्विच से लेके यहाँ तक जाती है। तो ये सारी ट्रांसपोर्टर वायर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि यार ये लो रेजिस्टेंस की हो, इनकी रेजिस्टिविटी लो हो। अब किन वायर्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है? किन वायर्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है? नाइक्रोम, लेट से, जहां पे जिनकी रेजिस्टेंस हाई है, जहां में चाहिए कि यार हीट प्रोड्यूस करो। भाई एक हीटर है, हीटर का काम हीट प्रोड्यूस करना है। उसका काम ये नहीं है कि करंट को आगे भेज दे, उसका काम है करंट को रोके और उसकी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करे। करंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 3 इफेक्ट्स होते हैं। एक क्या होता है? लाइटनिंग इफेक्ट, करंट आता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है? हीटिंग इफेक्ट, करंट आता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तीसरा इफेक्ट कौन सा हम यूज करते हैं? टर्निंग इफेक्ट। फैन में या मोटर्स में तो चीजें हमें रोटेट भी तो करनी है ना भाई। पंखा रोटेट करना है, एसी है उसके अंदर उसका ब्लोअर रोटेट कर रहा है, हेयर ड्रायर है तो उसका फैन रोटेट कर रहा है, वॉशिंग मशीन है तो रोटेट कर रही है, उसके बाद ग्राइंडर जूसर मशीन है तो रोटेशनल इफेक्ट भी तो चाहिए ना। तो वी ह्यूमंस आर एक्चुअली यूजिंग 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट: लाइटनिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन इन तीनों के लिए हमें डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है? हाई रेजिस्टेंस वायर चाहिए होती है, हाई रेजिस्टिविटी वायर चाहिए होती है, राइट? इज दिस थिंग क्लियर? सो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग which is, ये लिख लिया आपने this side? Okay, next thing is
लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी अ लिटिल. रेजिस्टिविटी क्या है? So now we are talking about resistivity. बेटा प्लीज इस पे बहुत फोकस करना है और रोज का काम रोज करना है, इसको डिले नहीं करना बिल्कुल. रेजिस्टिविटी इज रो. सो वी से रेजिस्टिविटी क्या होती है? पहली चीज हम लिख रहे हैं, दिस इज फीचर ऑफ मटेरियल, नॉट डायमेंशंस. यू नो व्हाट आर डायमेंशंस? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, हाइट. मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट रेजिस्टिविटी इज इट्स डेफिनेशन. सो वी से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल of length 1 meter is known as its resistivity. That's how we define it. This is the specific resistance, special resistance, जो हर उस मटेरियल की होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर हम रखते हैं. तो इनिशियल हमें लेंथ 1 मीटर रखनी होती है. क्यों? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. तो अगर आपने कोई नया मटेरियल डिस्कवर किया और उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ को 1 मीटर रखते हैं और फिर देखते हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी है. तो वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है फॉर 1 मीटर वायर, वही असल में उसकी रेजिस्टिविटी होती है. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है? रो इज आर ए बाय एल. कैसे? यहां से आपने क्या किया, रो को सब्जेक्ट बना लिया, एल बाय ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, उधर आके ए बाय एल हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई यू से रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. सो रो इज आर ए बाय एल. दिस इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी. आर क्या है? रेजिस्टेंस. ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. एल क्या है? लेंथ ऑफ दैट वायर. ठीक है. ओके, अब यहां से इसकी यूनिट की बात करते हैं. व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? अच्छा, यूनिट निकालो जरा इसकी. इसकी यूनिट हम निकालना चाह रहे हैं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओहम्स. रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट इज ओहम. इसको ओमेगा के साइन से लिखते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट थिंग, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. उसके बाद लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर्स. ऐसे ही है ना, वी जस्ट प्लग इन ऑल द यूनिट्स. अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो गया, तो what is left is the unit of resistivity, that is ohm meter. That's why I have defined it like that. मैंने क्या कहा? Resistivity is the specific resistance of wire of length 1 meter. तो मैंने इससे देखो इसको डिफाइन किया है, राइट? सो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई? ओहम मीटर. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम. तो क्लोज डिफरेंस है और वो क्या डिफरेंस है? जस्ट मीटर का डिफरेंस है. दैट्स इट. तो रेजिस्टेंस इज मीटर, रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. क्यों? रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, बट एक स्पेशल रेजिस्टेंस है. स्पेशल, स्पेसिफिक. किसकी? एक ऐसे मटेरियल की जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर. और ये साइंटिस्ट ने खुद स्टैंडर्ड रखा है, क्योंकि दैट्स हाउ वी कैन नो कि अच्छा यार हमें कौन सी वायर चाहिए. अगर हम टेक्निकली लेट्स से हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें हमें डिफरेंट वायर्स यूज़ करनी है, तो जब हम साइंस स्टोर पे जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे यार हमें ये वायर दे दो, वो वायर दे दो, नाम से नहीं कहेंगे. हम कहेंगे भाई हमें एक वायर चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी हो, ये वैल्यू. हमें एक वायर चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी होनी चाहिए. तो वो हमें उसके हिसाब से वायर्स निकाल के दे देंगे कि भाई इस वायर कितनी रेजिस्टिविटी है, इस वायर कितनी रेजिस्टिविटी है. राइट? ठीक है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी. अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे ये हमने देखना है. पहला क्वेश्चन इसका क्वाइट सिंपल, कि आपने सिंपल डायरेक्ट यूज करके फॉर्मूला को रेजिस्टिविटी निकालनी है. एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, राइट? एवरीथिंग विल बी गिवन. तो द फर्स्ट थिंग इज सिंपल न्यूमेरिकल, फाइंडिंग जस्ट द रेजिस्टिविटी वैल्यू. ये लिख लिया सबने? ओके, तो अब इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं.
Okay, so the heading is question types for resistivity. First one is finding value of resistivity. पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है. लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक मटेरियल है और उसकी रेजिस्टेंस है 2050 ओहम्स. ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस. उसके बाद बेटा उसका जो रेडियस है वो है 2.5 मिलीमीटर और उसकी जो लेंथ है दैट इज 0.05 kilometers. I'm just testing you for the upon prefixes as well. ठीक है, क्योंकि मिली और किलो prefixes हैं, इसको आपको रिमूव करना होगा. And now you're supposed to find resistivity. Find resistivity of material. चलें निकालें ज़रा. और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दो चीज़ें. एक आपको फॉर्मूला याद हो, बल्कि फॉर्मूला तो गिवन होगा, वो तो याद होने की ज़रूरत ही नहीं है. इट विल बी गिवन इन द डाटा बुक. आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने SI यूनिट्स यूज़ करनी है. सो कीप एन आई ऑन यूजिंग SI यूनिट्स. ठीक है, यूज SI यूनिट्स ओनली. ओके, सॉल्व करें ज़रा इसे. आप बेटा लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे? Okay, beta, what's the answer for this? Just plug in the value over there and you will get the answer. Resistance, resistivity is 2050 into 2.5. So it's pi 2.5 into 10 to the power minus 3 square over length, which is 0.05 into 10 to the power 3. चूँकि किलो जो है उसको आपको ख़त्म करना है, तो किलो की जगह 10 to the power 3 लगाया and just get the answer. हाँ, क्या आंसर निकला है? अभी तक नहीं निकला आंसर. 8.05 into 10 to the power minus 4 ओहम मीटर. अच्छा, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा नेगेटिव में होती है और -7 तक जाती है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, और जो गुड इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव में होती हैं, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है. राइट, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. बस पता होना चाहिए कॉमन सेंस कि गुड कंडक्टर्स हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी और वो नेगेटिव में होती हैं हमेशा. Right, and good insulators or bad conductors, they have high values of resistivity जो positive में होती हैं. Okay, so this is the answer. And one thing, if they have not asked you to give the answer in significant figure,
then you can use any significant figure, it's fine. If they have not properly written in the question कि give your answer in appropriate significant figure, तो तब आप किसी भी sig fig में लिख सकते हो. But the good practice is always to write in appropriate sig fig. This is but the good practice is. मतलब अगर आप ज़्यादा भी लिख देते हैं तो it's fine, you will score the mark, right? तो अगर वो कह दे give your answer in appropriate sig fig, फिर हमें देखना पड़ेगा 3 sig fig, 2 sig fig, 1 sig fig. 1 sig fig है ना, तो हमारा जो हाईलाइटर है वो क्या होएगा, लेंथ, विच इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. असल में हमारा हाईलाइटर लीस्ट sig fig होगा. आपने लीस्ट को देखना है वो कितने हैं, तो आपके आंसर में लीस्ट से एक ज्यादा हो सकते हैं. इसमें कितना है, 1 sig fig है, तो आप अपने आंसर में कितने लिख सकते हो, 2 sig fig लिख सकते हो. अगर वो कहे गिव योर आंसर इन एप्रोप्रिएट sig fig, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा. 8.1 इंटू 10⁻⁻⁴. तो ये आपका जनरल आंसर है और ये इन टर्म्स ऑफ sig fig है. राइट, क्लियर? मतलब रूल क्या है कि आपने डाटा में देखना होता है कि लीस्ट कितने हैं. अब आपको पता है सबसे ज्यादा तंग कौन सा नंबर करता है, जीरो तंग करता है. नॉन जीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट है, तो जीरो तंग करता है. आपने देखना है यार जीरो sig fig है या नहीं. जीरो अजीब सी चीज है, कभी sig fig होता है कभी नहीं होता, तो हमें तंग करता है, तो हमें फिर जीरो का देखना है. तो बेटा जो जीरो शुरू में आ रहे होते हैं लीडिंग जीरोस, दे आर इनसिग्निफिकेंट. और इसी तरह जो जीरो एंड पे आ रहे होते हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं. अगर अब इसमें कंडीशन है, अगर उससे पीछे कोई डेसिमल ना हो. अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो हमेशा इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सैंडविच जीरो है, ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन एंड वाला इनसिग्निफिकेंट है. और इसी तरह यहां तो हमें पता है कि दोनों, तो इसका मतलब है हम कहेंगे भाई यहां 3 टिक्स हैं, 2 है, यहां 1 टिक है, तो 1 इज ओवर लीस्ट sig fig, तो उसके हिसाब से फिर हमने आंसर लिखा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग which is factor based questions for finding resistance. Still we are in O levels. ये O levels वाली बात हम कर रहे हैं, nothing new over here. ठीक है, इनफैक्ट जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसमें कोई नई चीज है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन स्टाइल थोड़े से डिफरेंट है, बाकी कंटेंट वही है सारा. तो देखो फैक्टर बेस्ड क्वांटिटीज फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो हमें पता है फैक्टर बेस्ड टू फाइंड रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स कितने होते हैं. So we just have learned कि there are, अच्छा मैंने erase कर दिया कि there are 2 factors which I have written here as well. First is the length and second is the area. Length is length, it is very simple because length is the basic quantity, but area is not the basic quantity, so area will challenge us somewhere. How area will challenge us? 3 things. या तो वो direct area बता देगा भाई इतना area है, area नहीं बताएगा तो radius बता देगा. तो we know कि area is pi r square होता है, तो दैट्स वाई वी कैन से कि ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 चीजें देखो, एरिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने रेडियस दिया है तो वी शुड नो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर. हाउ? बिकॉज एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ये आपकी डाटा बुकलेट में लिखा होता है, पेज 1 में नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, ये वाले. फिर वी ऑल्सो नो कि रेडियस इज डायमीटर ओवर 2, तो इसका मतलब है हम रेडियस की जगह डायमीटर ओवर 2 मैं लिखूं तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d²/4, क्योंकि r की जगह d/2 लिख रहा हूं ना, तो उसका स्क्वायर तो d²/4 आएगा. तो पाई और 4 तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर एज वेल. तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. 1, resistance is inversely proportional to area if they give you directly area कि भाई इसका एरिया इतना है इतना है. अगर they give you radius तो resistance is inversely proportional to radius square. if they give you diameter resistance is inversely proportional to diameter square. बस ये याद रखना है आपने, ठीक है. अब इसकी बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो let's look upon the example. एक वायर है, दिस इज अ वायर, इसकी जो लेंथ है अभी वो x है, x इज इट्स लेंथ. उसके बाद ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एज आई टोल्ड यू दिस इज द वायर, सो दिस इज द लेंथ x, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस वन, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेट्स से a,
और बेटा ये जो वायर है ये कॉपर है, कॉपर, तो इसकी रेजिस्टिविटी लेट्स से रो है, मैं रो ही लिख देता हूं, नंबर नहीं लिखता, अभी मैं वेरिएबल्स की सेंस में चलूंगा। अब मैं ये करता हूं कि मैं इसी वायर को जो है वो ऐसे मोल्ड करता हूं कि मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, ठीक है। इसी, चूंकि ये डक्टाइल है तो मैं मैलेबल है, तो मैंने क्या किया, उसी को रोल किया ऐसे कि वही जो पहले वायर थी उसको ज़्यादा प्रेस किया, रोल किया और उसकी लेंथ बढ़ा दी। जब उसकी लेंथ बढ़ी तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर तो कम होना है, क्योंकि आई एम यूजिंग द सेम वॉल्यूम, राइट। ये कोई नया मटेरियल नहीं है, इट्स द सेम वायर विच इज रोल डाउन। तो जब उसको रोल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गर बट थिनर। तो इसकी लेट से इसकी अब जो लेंथ है वो हो गई 2x, और इसका जो एरिया हो गया, अभी आई एम कीपिंग इट सिंपल, इसके काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंट आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, कि इसका जो एरिया हो गया वो हो गया a/2, डिक्रीज हो गया ना a/2 या 0.5a। ओके, नेक्स्ट थिंग, और ये बेटा वही कॉपर वायर है, सेम कॉपर वायर। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट शुड बी द न्यू रेजिस्टेंस फॉर दिस वायर। Let's say the previous resistance is R. So find new resistance and find it in terms of R. In terms of R. R नहीं होगी। Okay, hold on. पहले जरा क्वेश्चन समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। एक वायर थी जिसकी लेंथ x है, इसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कॉपर वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी रेजिस्टेंस R थी। R कैन बी अ नंबर, बट अभी हम R ही लिख रहे हैं, वेरिएबल। अब इसको रोल किया, रोल करके इसकी लेंथ बढ़ा दी और लेंथ कितनी हो गई 2x, और जाहिर है ये थिनर हो गई तो इसका एरिया a/2 हो गया। अब मैं कहता हूं ये है कॉपर ही, बताओ यार इसकी न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, एंड गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ R। What does this mean? R should be in your answer. आपने बताना है 1R, 2R, 3R, 0.5R, 6R. Whenever they say in terms of, that thing should be part of answer. Should be part of answer. तो अब आप क्या करेंगे? Just winding this up. आप लोग थोड़ा सा अपने से कैलकुलेट करो ना, क्या बनेगा इसका आंसर, 4R बनेगा। ओके, सो देयर आर 2 ways to solve this. Okay, solution methods. So I'm talking about the first method. First method is equation method. You will say I have the equation R is rho L by A, and I have two materials, wire 1, wire 2, ठीक है। दोनों का अलग अलग मैं वैल्यूज पुट करूंगा। अब देखो वायर 1 में वैल्यू पुट करता हूं, उसकी रेजिस्टेंस R है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, उसकी लेंथ x है और उसका एरिया A है। ऐसे ही है ना वायर 1, ये डाटा मैंने वायर 1 के लिए पुट किया। ये मैं वायर 2 के लिए करता हूं, न्यू रेजिस्टेंस आई हैव टू फाइंड, व्हाट इज रो, रो इज रो, व्हाट इज L, 2x, व्हाट इज A/2, ऐसे है ना, जस्ट प्लग इन द वैल्यू, सॉल्व इट। R new equals rho, this 2 will go up, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4x by A, then 4 rho x by A, and you know this rho x by A is what? It is this R. So you say that R new is equal to 4 times the previous resistance, right?